Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve first problem of final account with adjustments. Now let us begin with our problem. Question number 1. From the following trial balance, prepare final accounts of Satish Traders as on 31st December 2013. Immediately after reading this, we'll draw the format and heading. So the format of final account is ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसेस M/S, इसको हम मेसेस पढ़ेंगे. हियर वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द बिजनेस. सो बिजनेस का नाम क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर आवर क्वेश्चन द नेम ऑफ द बिजनेस इज सतीश ट्रेडर्स. And the second line will be for the year ending 31st December 2013. And if you are making an account, it is mandatory to write DR and CR on both the sides. Now, let us begin with the format of journal, with the format of balance sheet. That is, balance sheet of Mrs. Satish Traders as on 31st December 2013. You can observe here there is no DR and CR because balance sheet is a statement और statement में हम DR CR नहीं लिखते. So on the right hand side you can see assets and on the left hand side you can see liabilities. Right? Now let us begin with our problem. Directly we will start with the adjustment part. ठीक है, हम ट्रायल बैलेंस को छोड़ के हम सीधा क्वेश्चन की शुरुआत हेडिंग पढ़े बाद एडजस्टमेंट से करते. सो व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक. द सेकंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी. डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%. बैड डेट्स 500. and the last adjustment is prepaid wages 500. Now let us understand each and every adjustment in detail. Observe very carefully. The first adjustment is closing stock, that is 2100. Closing stock को how we need to treat all the adjustments. एक रूल है हमारा. What is that rule? Every item of adjustment must appear twice. एडजस्टमेंट के हर आइटम को 2 बार लिखना है हमारा, ठीक है. एंड एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट अपीयर ओनली वंस. ट्रायल बैलेंस के हर आइटम को सिर्फ एक बार लिखना है. दिस इज अवर फर्स्ट रूल. एडजस्टमेंट के हर आइटम को 2 बार लिखो और ट्रायल बैलेंस के हर आइटम को एक बार लिखो. सो लेट अस सी क्लोजिंग स्टॉक. पहली बार किधर लेना है इसको? फॉर द फर्स्ट टाइम इट शुड बी टेकन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट मस्ट बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड बताना है. सो दिस इज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट. Let us see the second adjustment, that is outstanding stationery 600. अब stationery is our expenditure, right? Outstanding मतलब बाकी है. So how we need to treat this adjustment? For the first time, it should be added to the stationery on the debit side of profit and loss account. Profit and loss account में debit side stationery की value में add करना है for the first time. And remember always, outstanding हम हमेशा add करते, prepaid हम हमेशा less करते. So for the first time, outstanding stationery must be added to the stationery on the debit side of profit and loss account. And for the second time, it must be shown on the liability side in balance sheet. दूसरी बार balance sheet में liability side outstanding stationery बताना है. So जितना outstanding है उतना ही बताओ. So the outstanding is 600. Will show only 600 on the liability side in balance sheet, right? So let us see the third adjustment, that is depreciation on machinery. इसका मतलब क्या है? रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की अगर वैल्यू कम हो रही तो दैट इज डेप्रिसिएशन. सो मशीनरी इज अवर एसेट, राइट? हमारे मशीनरी की वैल्यू कम होना हमारे लिए नुकसान है, लॉस है. इसीलिए हर नुकसान को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहली बार बता दें. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट मस्ट बी टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड फॉर द सेकेंड टाइम किसकी वैल्यू कम हुई? मशीनरी की वैल्यू. तो हमें क्या करना है? सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में एसेट साइड जो मशीनरी लिखते हैं आप, वो मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस करना है. सो फॉर द सेकेंड टाइम इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द मशीनरी ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. नाउ लेट अस सी द फोर्थ एडजस्टमेंट, दैट इज बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब पैसे डूब गए. कौन डुबाते? जिसको हम उधार पे दिए. हम किसको उधार पे दिए? डेटार्स को. डेटार्स आर अवर एसेट, ठीक है. तो डेटार्स
पैसे देना था, दिए नहीं, डुबा डाले, कितने, 500, तो हमारे लिए नुकसान है ये, और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बताना. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू शो बैड डेट्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर दूसरी बार क्या करते हैं हम, फॉर द सेकेंड टाइम इट मस्ट बी डिडक्टेड, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसमें से, फ्रॉम द डेटार्स, डेटार्स में से डिडक्ट कर रहे हैं सेकेंड टाइम. अब डेटार्स लिखते किधर आप, बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटार्स लिखते. सो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फॉर द सेकेंड टाइम bad debts must be deducted from debtors on the asset side of balance sheet. Let us see the last adjustment, that is prepaid wages. Outstanding हमेशा add करना है, prepaid हमेशा less करना है. Always remember this. So for the first time it should be deducted. prepaid को हमेशा less करना है, इसीलिए हम deduct कर रहे हैं, किसमें से, wages में, from the wages. और wages हम किधर रिकॉर्ड कर दे, on the debit side of trading account, जो कि थर्ड परमानेंट आइटम है wages ट्रेडिंग अकाउंट का. सो फॉर द सेकेंड टाइम दिस प्रीपेड अमाउंट मस्ट बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. प्रीपेड मतलब हम पहले से पे करें, किसके पैसे, वो हमारे पैसे हैं, राइट. सो हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता, वी नीड टू राइट इट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. नाउ लेट अस बिगिन विथ द ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस में आपको एक डेबिट बैलेंस दिख रहा और एक क्रेडिट. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इफ वी नीड टू सर्च फॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अगर हम ढूंढ रहे हैं, कौन सा भी रहने दो, तो वो डेबिट बैलेंस में मिलता, राइट. या फिर हम एसेट ढूंढ रहे हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर एसेट देन इट डेफिनेटली अपीयर ऑन द डेबिट बैलेंस. इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपेंडिचर सर्च कर रहे हैं आप तो डेबिट में ही मिलता, एसेट सर्च कर रहे हैं तो भी डेबिट में मिलता, राइट. सो every debit item is an expenditure, if not it must be an asset. Similarly every credit item is an income. ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट आइटम इनकम है, अगर वो इनकम नहीं रहा तो दैट मस्ट बी अ लाइबिलिटी. तो इनकम ढूंढना है और लाइबिलिटी ढूंढना है तो क्रेडिट बैलेंस में देखो, या फिर एसेट ढूंढना है, एक्सपेंडिचर ढूंढना है तो डेबिट बैलेंस में देखो. सो दिस वाज द रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस. नाउ what we need to do, we need to begin with our problem. तो प्रॉब्लम में हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट से शुरुआत करेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट आइटम ऑफ क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पहला आइटम रहता सेल्स. सेल्स इज अवर इनकम, इनकम को ढूंढना है तो क्रेडिट साइड सर्च करना. सो दिस इज सेल्स 20,000. ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स लिखने से पहले रुक जाना है और सेल्स रिटर्न है क्या देखना है. सो वेयर वी नीड टू सर्च सेल्स रिटर्न, ऑन द डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस में मिलता. सो वी नीड टू सर्च सेल्स रिटर्न ऑन द डेबिट बैलेंस. हियर वी कैन सी रिटर्न दैट इज 1,000. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द अमाउंट ऑफ सेल्स इन द इनर कॉलम ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सो व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज रुपीज 20,000. And after that, from this 20,000, we need to deduct the amount of returns. तो returns कितना है, 1,000. Here you can observe 1,000 in bracket. इसका मतलब क्या है, this is a negative figure. Negative figure को हमेशा माइनस करना है और इधर भी हम स्पेसिफाई कर दिए. So what is the actual sales? The net sales is rupees 19,000. Everything is done. Now what we need to do? We need to write the last item of credit balance. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट आइटम लिख रहे हैं हम. दो आइटम्स रहते हैं, नंबर 1 इज सेल्स, नंबर 2 इज क्लोजिंग स्टॉक. तो लास्ट आइटम किधर दिखता है हमको, इट विल अपीयर इन एडजस्टमेंट्स ऑलवेज. सो एज पर आवर एडजस्टमेंट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज 2,100. सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल राइट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 2,100. देन आफ्टर दैट विल बिगिन विद द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 3 परमानेंट आइटम है. नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, number 2 purchases, number 3 wages. अब what we need to do, we need to search for opening stock. Opening stock, that is 1,000. Directly we'll move towards the debit side of trading account and we'll write opening stock 1,000. Then after this the next permanent item is purchases. अब purchases हमको debit side दिखता, that is 11,000. And from this 11,000 we need to subtract returns. Which return? Purchase return.
और परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता। सो वी नीड टू सर्च फॉर परचेज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड हम सेल्स परचेज रिटर्न को सर्च करेंगे, दैट इज ₹800। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द वैल्यू ऑफ परचेजेस इन द इनर कॉलम। पहले हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड मूव होना है, we'll write the value of purchases in the inner column, that is 11,000. From this 11,000 we will subtract 800, that is purchase return. So इसको subtract करने के बाद what will be the value of net purchases? It is 10,200. Then after that let us see the third permanent item. थर्ड परमानेंट आइटम देखने से पहले ये चीज हमारे रिमेंबर होना है। अब इसके लिए, इसको रिमेंबर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू मेक अ डॉट इन अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में डॉट लगाना जरूरी है। किधर डॉट लगाते हैं, टू आइडेंटिफाई एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी का डॉट आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाजू लगाना है, विजिबल रहना डॉट, राइट। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का डॉट मशीनरी के बाजू लगाना है, ये भी विजिबल रहना, राइट। देन आफ्टर दैट बैड डेट्स का डॉट हमको डेटार्स पे लगाना है, ये भी विजिबल रहना। एंड प्रीपेड वेजेस का डॉट हमको वेजेस पे लगाना है। सो अगर हमको डॉट दिखा क्वेश्चन में तो इट मींस देयर इज एन एडजस्टमेंट रहते कि वी विल राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम। ठीक है, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस, द अमाउंट ऑफ वेजेस इज ₹3,000। अब ये 3,000 को हम इनर कॉलम में लिखेंगे 3,000, and from this 3,000 we need to subtract prepaid। कई को प्रीपेड हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे। सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीपेड वेजेस, पहली बार डिडक्ट करना है वेजेस में से, दूसरी बार एसेट साइड इंडिपेंडेंट आइटम बताना है। सो डायरेक्टली we'll move towards the debit side of trading account and we'll write wages in the inner column, and from this 3,000 what we are doing, we are deducting prepaid wages, that is 500। अब जब आप इसमें से 500 माइनस करेंगे सो द वैल्यू ऑफ वेजेस विल बी 2,500, राइट। नाउ लेट अस बिगिन विद द बिगिनिंग। अब हम शुरुआत से शुरू करना है। 3 परमानेंट आइटम हो गए। हर डेबिट आइटम के पास जाओ और देखो, इफ द एक्सपेंडिचर बिलोंग टू गुड्स तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर बिलोंग टू फैक्ट्री तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स and expenses related to factory are known as trading expenses। और हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कुछ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो लेट अस सी ओपनिंग स्टॉक डन। कैश इन हैंड इज अवर एसेट, कैश इन बैंक, कैश एट बैंक is our asset. Purchases we have recorded, wages we have recorded, returns we have recorded. Then the next item is carriage inward. Carriage inward is the expenditure related to goods when they are purchased. तो गुड्स का खर्चा दिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी गुड्स का खर्चा दिखते कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सो व्हाट विल डू, विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी विल राइट कैरेज इनवर्ड, दैट इज 1,000, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट आइटम, कैरेज आउटवर्ड। आपको कुछ भी करना नहीं है, आउटवर्ड दिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिख देना, सिंपल। गुड्स अगर खरीदते वक्त खर्चा हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, गुड्स अगर बेचते वक्त खर्चा हुआ, आउटवर्ड मतलब बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, सो गुड्स अगर बेचते वक्त खर्चा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आउटवर्ड दिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिख देना है। इन्वेस्टमेंट इज अवर एसेट, पेटेंट्स इज अवर एसेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम, लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ड्राइंग्स दिखते कि कैपिटल पे एक डॉट लगाना है हमको जाके, वाई, बिकॉज ड्राइंग्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल में से हमेशा हम ड्राइंग्स को माइनस करते, राइट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मशीनरी इज अवर एसेट। नाउ एवरीथिंग इज डन। आफ्टर दिस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वेरीफाई। अब वेरिफिकेशन कैसा करते हैं हम, एडजस्टमेंट में जाके वेरीफाई करो, क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर कर लिए, हो कर लिए, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, नहीं आता। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, ये भी नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट में। बैड डेट्स नुकसान हो रहा, हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता, नहीं आता। प्रीपेड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, हम ले लिए। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैड वेरीफाइड, पूरे आइटम्स हम कंसीडर करें ना करें, डन। नाउ एवरीथिंग इज डन।
what we need to do? We need to do the total. So जब आप इसका टोटल करेंगे, so you can observe that the credit balance is more. ठीक है, तो हमारा काम क्या है, जो बैलेंस ज्यादा रहता वो हम उसको दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देते हैं. सो द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 21,100. अब इसको हम डेबिट साइड भी लिख देते, दैट इज 21,100. इसका टोटल आ गया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं आप, पहले टोटल करो, जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिख डालो. फ्रॉम दिस 21,100 वी नीड टू डिडक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. ठीक है, क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल आ रहा वो माइनस करो ये 21,100 में से. तो हमको क्या आता, ग्रॉस प्रॉफिट. सो द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 6,400. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन हम लिखे. अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैरिड डाउन लिखे बाद ब्रॉट डाउन करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है. सो व्हाट वी विल डू, विल डायरेक्टली राइट दिस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, ऑन द क्रेडिट साइड. अब इन्हें इधर से कूद के इधर आ जाता टोटल के नीचे. इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. सो व्हाट वी नीड टू राइट, वी नीड टू राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज 6,400. अब ऑलवेज रिमेंबर, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बिगिन इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एक आइटम परमानेंट आइटम है एंड दैट आइटम इज सैलरीज. लेट अस सर्च फॉर द सैलरीज इन अवर क्वेश्चन. द सैलरीज इज 1,300. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मूव होना है, मूव होके डायरेक्टली विल राइट सैलरीज, दैट इज 1,300. देन आफ्टर दैट लेट अस सर्च ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, कैश इन हैंड नहीं आता, yes, carriage outward, that is 500, and salary we already considered. Legal expenses, that is 600, insurance 800, discount 750, printing and stationery 1,400. So these are all expenses which we have not considered in trading account, have to be considered in profit and loss account. ठीक है, अब हम salaries लिख डाले. Now let us write the next expenditure, that is carriage outward. Outward दिखते कि profit and loss account में लिखना है, that is 500. Then after this we will write legal expenses 600. Then after this we will write insurance, that is 800. Then after this we will write discount. Discount अगर debit side दिखा तो debit side ही आता. So 750 is the value of discount, that is discount allowed. Then after that the next item of profit and loss account debit side is printing and stationery. अब ये printing and stationery को मैं inner column में क्यों लिखा, because we have an adjustment. अब इसकी adjustment है क्या, let us see, that is outstanding stationery 600. outstanding हमेशा add करते हैं, so for the first time we need to add the outstanding stationery to the stationery on the debit side of profit and loss account. So the amount of outstanding is 600. अब जब ये 600 ऐड हो जाएगा इसको, तो the value, the actual value, what will be the actual value of printing and stationery, that is rupees 2,000. 1,400 plus 6,000 is nothing but 2,000. Then after that we'll write depreciation on machinery. अब ये depreciation on machinery हम इधर क्यों लिखे, because depreciation is reduction in the value of our machinery. हमारे मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए नुकसान है. हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है आपको. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट मस्ट बी टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब डिप्रिसिएशन मशीनरी 10% बोल रहा बस. नाउ हाउ वी नीड टू कैलकुलेट, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी. पहले मशीनरी की वैल्यू देखो कितनी है. द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रुपीज 6,000. कितनी है मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू 6,000 है. अब 10% वैल्यू कम हुई बोल रहा, तो सीधा सीधा 6,000 में से एक जीरो हटा दो. सो जब 6,000 में से एक जीरो आप हटाएंगे तो वैल्यू 600. सो 600 इज द वैल्यू ऑफ 10%, करेक्ट. सो वी आर राइटिंग 600 हियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन आफ्टर दिस विल राइट बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या है, हमारे लिए नुकसान है. हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता,
So the value of bad debts is rupees 500. Now everything is done. What we need to do, we need to move towards the credit side. Credit side सिर्फ एक इनकम है, that is discount. अबे एक इनकम है, क्या बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ? Let us see the question. You can see there is only one income, that is discount. Creditors liability है, capital liability है, returns हम already consider कर लिए trading account में, sales भी हम consider कर लिए. Now what we need to do, we need to write discount on the credit side of profit and loss account. ठीक है, everything is done. Ultimately and finally we need to find the final result, that is net profit. अब net profit कैसा आता? टोटल करो, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख डालो. So if you do the total, the credit side is more than the debit side, क्योंकि 7200 है. अब this 7200 we need to write on the debit side also. लिख दिया. अब ये 7200 में से डेबिट साइड का टोटल करो. ये 1300, 500, 600, 800, 750, 2000, 600, 500, ये पूरों का टोटल करना है आपको, और 7200 में से वो टोटल को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. ठीक है, तो जो वैल्यू आती माइनस करे बाद, वो वैल्यू को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, दैट इज 150. एंड दिस नेट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट? And after that we will begin with the first item of balance sheet on liability side, that is what? Capital. ठीक है, अब कैपिटल पे दो एडजस्टमेंट है. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज नेट प्रॉफिट, जो कि ऐड करना है. तो हम क्या करते हैं, इनर कॉलम में कैपिटल का वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 40,000, एंड टू दिस 40,000 विल ऐड 150 एज नेट प्रॉफिट. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस कर देते. ठीक है, so the amount of drawings is 1000. The actual amount of capital will be appear in the outer column. So 39,150 will be the actual amount that must be appear in the outer column. 39,150. ये liability होगी. If you are searching for liability, then we need to search on the credit balance, credit side. किसके credit side? Trial balance के. So sales done return, only there is only one liability, and that is creditors. अब आपको क्या करना है, directly we'll move towards the liability side of balance sheet and will write creditors, that is 4,250. अब हो गया? नहीं हुआ. what we need to do, we need to verify. क्वेश्चन में जाओ, जाके वेरीफाई करो. क्लोजिंग स्टॉक, नो. आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी इज अवर लाइबिलिटी, एंड एवरीथिंग इज डन. वी कैन सी वन मोर लाइबिलिटी, दैट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब हम बाकी है. बाकी है मतलब स्टेशनरी 600 रुपये आप नहीं दिए स्टेशनरी के, तो देना है. दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. इट इज नथिंग बट लाइबिलिटी. हमारी जो जिम्मेदारी रहती है ना पे करने की, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज 600. नाउ व्हाट विल डू, विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड. अब लेट अस डिस्कस व्हाट आर द वेरियस एसेट्स. एसेट को ढूंढना है तो डेबिट बैलेंस में ढूंढना हमेशा. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये एसेट्स है. एंड इन्वेस्टमेंट इज अवर एसेट. पेटेंट इज अवर एसेट, ये इंटेंजिबल एसेट है. दिस इज अवर राइट, कॉपीराइट, राइट हक है हमारा. पेटेंट, पैटेंट, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट. एंड आफ्टर दैट विल राइट मशीनरी. सो मशीनरी. अब व्हाट वी नीड टू कंसिडर, जिस पे डॉट्स है उसको हमें कंसिडर करना है हमेशा. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट आइटम ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज नथिंग बट मशीनरी. अब इसके अमाउंट को मैं इनर कॉलम में लिया, क्या के बाद से इसके ऊपर डॉट है बोल के. अब व्हाट इज दैट डॉट? डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन वो तो वैल्यू बढ़ती कम होती वैल्यू. सो वी नीड टू सबट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम मशीनरी. अब इसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे. द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, दैट इज 600. ठीक है, ये एक नेगेटिव फिगर है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखें. ब्रैकेट में लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट ब्रैकेट में लिख डाले हम इसको. सो the value, the actual value of machinery at the end of the year is 5,400. then after that the next asset is patents. ये intangible asset है, 7,000 लिख डाले. then after that the next asset is investment. हमारे पैसे इन्वेस्ट करें, हमारा पैसा हमारा एसेट रहता है, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में लिख दिए. then after that closing stock 2,100. then after that डेटार्स. अब डेटार्स की वैल्यू को मैं इनर कॉलम में क्यों लिखा? बिकॉज डेटार्स पे एक डॉट दिख रहा है आपको. डॉट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट में आप आके वेरीफाई करें, सो यू कैन सी
बैड डेट्स, द वैल्यू ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स बोले तो डेटार्स की वैल्यू कम हो रही, पैसे डुबा दिए लोग, कितने पैसे डुबाए 500, सो वी नीड टू रिड्यूस, वी नीड टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम डेटार्स इन द बैलेंस शीट जो कि 500 है, तो डेटार्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है 11,500. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट आइटम इज प्रीपेड वेजेस. अब प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड पहले से हम पे करें, दैट इज अवर एक्सपेंडिचर, अभी हुआ नहीं, हम एडवांस में पे करके रखे, द एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस, ठीक है, मस्ट बी shown on the asset side on balance sheet, every prepaid expenses, right? Then after that the next item is cash at bank 1,500 and cash in hand a 6,000. now everything is done. अब हम क्या करना है, हमको बैलेंस शीट का टोटल करना है. अगर टोटल बराबर आया तो बैलेंस शीट इज टैलीड, टोटल बराबर नहीं आया तो हमारी गलती है, वी नीड टू वेरीफाई अवर मिस्टेक. अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा प्रोसीजर सही करने के बाद कैलकुलेशन एरर में मार खाते रहा. सो कैलकुलेशन में बहुत क्रूशियल होना है और परफेक्ट होना है आप लोगों को. सो लेट अस डू दिस. तो इसको टोटल करने से पहले हम वेरीफाई करेंगे कि एडजस्टमेंट का हर आइटम 2 बार आया नहीं आया. लेट अस सी आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, एक बार स्टेशनरी को ऐड करें, एक बार इधर दिखा दिए, करेक्ट. उसके बाद डिप्रिसिएशन एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड दिखाया, एक बार मशीनरी में से लेस कर दिए. उसके बाद डेटार्स पे जो ये बैड डेट्स है ना, बैड डेट्स एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड दिखाया और इसमें से माइनस कर दिए डेटार्स में से, ठीक है. प्रीपेड वेजेस एक बार वेजेस में से माइनस करें और दूसरी बार एसेट साइड बता डाले. नाउ क्लोजिंग स्टॉक, एक बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड लिखे और बैलेंस शीट एसेट साइड लिखे. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू डू टोटल. तो जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड बराबर आते हैं. सो द टोटल ऑफ assets will be 44,000 and the total of liabilities will be, and the total of liability will be 44,000. From this we have completed the first problem of final account with adjustment. The next video will deal with the next problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.